So last class topic was super profit method. In super profit method हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसमें कि what is the meaning of super profit? Super profit means, as I have said, it is known as extra profit, or we can say that the excess of actual average profit over normal profit is called super profit. Means अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते टाइम एस्टिमेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमको नॉर्मल प्रॉफिट 10% होना चाहिए, बट एक्चुअल में हमको 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो इट मीन्स कि वी आर अर्निंग 2% मोर देन आवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट. ओके, so this 2% will be called super profit, right? So how to calculate super profit? In last class I have taught you all people average profit minus normal profit is called super profit, and average profit I think everybody is knowing how to calculate, and normal profit also I have taught कि normal profit is to be calculated as capital employed into NRR, means normal rate of return का इंटू कर देंगे मीन्स बाय 100. सो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100. सो हम लोग ये क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी हाँ नॉर्मल प्रॉफिट. CE मीन्स हियर कैपिटल एम्प्लॉयड, NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन 100. ये हम लोग लास्ट क्लास में पूरा आप लोगों ने स्टेप वाइज पढ़ चुका है कि क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं, एवरीथिंग. और फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके. देन आफ्टर वी डू कैलकुलेट द गुडविल बाय मल्टीप्लाइड इनटू द नॉर्मल सुपर प्रॉफिट number of purchasing year as given in the question. Okay, so students, today's topic is capitalization of profit method to evaluate the goodwill. Earlier we all are knowing that we are doing a study how to evaluate the goodwill. So in last class, up to last class, I have taught you all the different methods of the evaluation of goodwill, like average profit method I have taught, then weighted average profit I have taught, and then after super profit method. So till now I have taught you all people 3 methods to calculate the value of goodwill. Now today we are going to study the method, another method of goodwill calculation, that is capitalization of profit method. Okay, so this includes two types of capitalization. First of average profit, फर्स्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. एक तो ये टॉपिक आता है. सेकेंड टॉपिक है इसके अंदर ऑफ सुपर प्रॉफिट. ओके, मींस ये देखो दो अलग अलग है. अब क्वेश्चन में पूछता है कि कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है. इफ इट इज आस्किंग calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method, so then you will calculate by applying the formula of this method. So one by one I am going to start first average profit, and this topic this year in board exam has come a 4 marks question. So see the steps. So I think you all have written, you write the first capitalization of average profit, second capitalization of super profit, right? So I'm going to start capitalization of average profits. So what steps we should take to calculate the value of goodwill? So first step we find average profit. देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को फाइंड करना है. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया तो नो नीड टू फाइंड, पहला स्टेप ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड स्टेप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट.
शॉर्ट में मैंने एपी लिख दिया है, एपी फॉर एवरेज प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सेकेंड स्टेप। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, ये हमें भी इसके साथ हम लिख लेते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। सो देखिए आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो आप कैलकुलेट करोगे या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे इनटू 100, आप क्या करेंगे इनटू 100 अपॉन एन आर। एनआरआर का मतलब सभी लोगों को पता होगा, आई थिंक जो लोग प्रीवियस क्लास ज्वाइन किए थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको लोग फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, राइट। सो देखिए सेकंड स्टेप में क्या है, एवरेज प्रॉफिट पहला हमने नहीं बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है, बिकॉज ऑलरेडी यू पीपल आर नोइंग हाउ टू कैलकुलेट average profit because total of profit upon number of year. Now capitalization of AP is equal to AP into 100 by NRR. Third step, capital employed. So capital employed is also known as capital invested, right? सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है ये भी मैंने बताया है लास्ट क्लास में, सुपर प्रॉफिट मेथड में। देखो सब कुछ हम बता चुके हैं सुपर प्रॉफिट में, जो पहले पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, सिर्फ उसी को हम फिर से रिकॉल भी कर रहे हैं साथ में। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है आपको मालूम है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और भी अदर फॉर्मूलाज हैं, अदर तरीके हैं फाइंड करने के, सब मैं लिखवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, ओके। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, सो आपने पहला स्टेप क्या लिया, एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, अगर गिवन है तो नो नीड टू फाइंड। सेकंड स्टेप कंपलसरी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। थर्ड स्टेप क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन और नहीं गिवन है तो आप फाइंड करेंगे। फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप, गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, गुडविल जो हम फाइंड करते हैं वो हमेशा फर्म की ही गुडविल होती है, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म। सो कैसे फाइंड करेंगे, सो इसको फाइंड करने के लिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, तो कुछ है नहीं ज्यादा, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं कि जो सेकेंड स्टेप है और थर्ड स्टेप है, इसी का डिफरेंस है, याद रखिए, सेकेंड स्टेप माइनस थर्ड स्टेप। बट हम सेकेंड माइनस थर्ड तो लिखेंगे नहीं, हम नाम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। Okay, so students you can see this second minus third में सेकेंड स्टेप पे क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस थर्ड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसलिए मैंने लिख दिया, सेकेंड थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, वो सिर्फ शॉर्टकट में समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस साल 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो बड़ा अच्छा था। 1 मार्क्स था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी पे, बिकॉज एपी गिवन था, 1 मार्क्स इस पे था, फिर एक नंबर फॉर्मूला लिखने पर था और एक नंबर फाइनल आंसर पे था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस साल। आप सोचिए कि कितना सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का, जस्ट नोट इट डाउन। So students, capitalization of average profit is over now. Now second we are going to continue capitalization of super profit method. So see how to calculate the goodwill by this method. This is also very simplest method. Just I will tell you into two formulas only, because already you people are knowing to how to calculate the super profit. So first step I am taking, find super profit. एंड कैसे आता है सुपर प्रॉफिट, यू ऑल आर नोइंग एपी माइनस एनपी इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये आप लोग को पता है, मैंने फिर से लिख दिया। एपी क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एनपी क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा। सो सबसे पहला स्टेप सुपर प्रॉफिट।
second step, goodwill. Goodwill is equal to super profit into 100 by NRR. सो देखा यहाँ मैंने आपको दो स्टेप में, हालांकि देखा जाए तो दो स्टेप नहीं है। सुपर प्रॉफिट के लिए पहले आप एपी फाइंड करोगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके फिर आप कैपिटलाइज करोगे। तो लेकिन मैंने आपको सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिया हमने फाइंड सुपर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एपी माइनस एनपी। और फिर सेकंड स्टेप हो जाएगा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर, दैट्स इट। यहीं पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा गुडविल। सो आप लोग इसे नोट कर लो। आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर, यू शुड आल्सो नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। सो क्वेश्चन इज the average profit is 48,000, okay, and total assets rupees 8 lakhs and liabilities and other liabilities rupees 5 lakh. So average profit 48, total asset 8 lakh, other liabilities 5 lakh. ठीक है, average rate of return of business is 12%. ठीक है, so calculate value of goodwill by capitalization of average profit. So क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। The average profit is 48,000 given है, total asset 8 lakh and other liabilities of the firm 5 lakhs. Average rate of return, so average rate of return को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी को हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी एवरेज को फेयर रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल, ओके। सो अब है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। सो आई थिंक आई हैव टॉट यू ऑल टू हाउ टू कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, नो नीड टू फाइंड। सेकंड, यू नीड टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप क्या निकालेंगे हम लोग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, capitalized value of AP, average profit, okay. So capitalized value of average profit is equal to 48,000 into 100 by 12. Yes, Mrityunjay, wait, just I'm solving here, then you will give you answer. 12 4 is 48, so कितना हो गया, 4 lakhs. सो 4 लाख हो गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। सेकंड स्टेप क्या फाइंड करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जैसा कि आपको पता है। तो एसेट्स कितना है, 8 लाख और लायबिलिटी कितना है, 5 लाख। सो 8 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। So I think 3 lakh, this is clear to all of you कि 4 lakh capitalized value है और capital employed is 3 lakh. Now what we will do, so the last step is to calculate the goodwill. So goodwill is equal to
We will put the formula capitalized value of AP minus capital employed. Okay, right? So capitalized value कितना हमने फाइंड किया 4 लाख और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख. तो आंसर कितना आएगा 1 लाख. सो आंसर कितना हो गया आपका गुडविल की वैल्यू हो गई 1 लाख. ठीक है, नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो डू सेम क्वेश्चन by capitalization of super profit method. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. So capitalization of super profit method. So आपको पता है कि इसमें कौन कौन सा स्टेप लेते हैं. पहले हम सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट को दिया है आपका 48,000. अब चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने सॉल्व किया था 3 लाख आया था ना. तो 3 लाख 8 लाख माइनस 5 लाख इनटू एनआरआर 12%. सो आ जाएगा 36,000. सो 36,000 क्या हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे जैसा कि फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी. एपी कितना है 48,000 क्वेश्चन में गिवन है और नॉर्मल हमने निकाला 36,000. सो यहाँ आ जाएगा 12,000. राइट. अब हम लोग गुडविल फाइंड करेंगे. सो गुडविल इज इक्वल टू 12,000 हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर. एनआरआर कितना है 12%. So 12 से 12 ये कैंसिल हो गया. 1 टाइम्स में 1000 into 100 will be 1 lakh. So I think is it clear to all of you? Just note it down students. So see here कि normal rate of return 12% है और एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया 48,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है. सो 3 लाख रुपीस पे हमको एटलीस्ट कितना अर्न करना चाहिए 12%. दैट विल बी 36,000. बट रियल में एक्चुअल में हमने जो प्रॉफिट अर्न किया वो 48,000. तो हमने प्रॉफिट कम अर्न किया या ज्यादा. तो आप देखिए यहाँ 48 माइनस 36 हमने 12,000 रुपए ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया. सो क्या कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उस पैसे से हमें 36,000 रुपए कमाना चाहिए, बट कमा रहे हैं 48,000 यानी 12,000 ज्यादा कमा रहे हैं. तो इस एक्सेस प्रॉफिट के लिए कोई पैसा बिजनेस में लगाया था मैंने नहीं लगाया था. ठीक है, तो इस 12,000 रुपए को कमाने के लिए हमें कितना कैपिटल और लगाना चाहिए. तो आप सोचो खुद से कि 12,000 रुपए ये अर्न करने के लिए 12% के रेट से है अगर, तो हमको और कितना कैपिटल लगाना चाहिए 1 लाख रुपए, क्योंकि 12% है इन अर्निंग. तो 12,000 रुपए बिना पैसा लगाए अर्न कर रहे हैं, बिना कैपिटल लगाए. तो ये बता रहा है कि 12,000 जो एक्सेस कमाया हमने बिना कैपिटल लगाए. अगर हम कैपिटल लगाते इस 12,000 रुपए को कमाने के लिए तो कितना लगाते हैं 1 लाख रुपए लगाते हैं, क्योंकि 100 बाई एनआरआर. ठीक है, तो ये बता रहा है कि बिना 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो इसका मतलब ये 1 लाख रुपए की हमारी क्या होगी गुडविल होगी. हमारी इतनी गुडविल है कि बिना हम एक्सेस मनी लगाए हम प्रॉफिट को अर्न कर ले रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं. तो बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि 3 लाख रुपया अगर 48,000 रुपया कमाने के लिए हमको 4 लाख रुपया लगाना चाहिए. ठीक है, 48,000 रुपया कमाने के लिए हमको कितना लगाना चाहिए. अगर एवरेज प्रॉफिट देखा जाए तो 100 बाई 12 यानी 12% है तो 4 लाख रुपए हमें लगाना चाहिए. लेकिन हमने लगाया कितना है 3 लाख रुपया बिजनेस में लगाया है. तो बिना 1 लाख रुपया लगाए हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट आवर गुडविल. ये हमारी गुडविल है 1 लाख रुपए की, तब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं. ठीक है,